Hello students, welcome to my channel. In today's lecture, we are going to study about nerve impulse, which is from chapter Coordination and Control. So let's start today's topic. What is nerve impulse? The electrochemical signal developed by a neuron for communication is called nerve impulse. So one neuron wants to talk to another neuron, and the way they can talk to each other is through the signal which is called nerve impulse. The nerve impulse has following parts. The one is called the resting membrane potential. Second is called the action potential. Third is called the propagation of impulse, and the fourth is called synapse. So let's first talk about resting membrane potential. When there is no stimulus, when no stimulus is coming to the neuron, the unstimulated inactive neuron has a membrane potential of minus 65 millivolt. The unstimulated inactive neurolema plasma membrane of the neuron maintains a charge of minus 65 millivolt, variable between minus 40 millivolt to minus 90 millivolt. This electrical potential is called resting membrane potential. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा न्यूरॉन के पास, कोई चेंज नहीं आ रहा एनवायरनमेंट में, कोई इलेक्ट्रिक शॉक, कोई पेन, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, तो न्यूरॉन जो होगा वो इनएक्टिव स्टेट में होता है. उस इनएक्टिव स्टेट में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलीमा, और उस इनएक्टिव स्टेट में न्यूरॉन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, while outside of the neuron membrane has positive charge. Why inside of the membrane has negative charge and outside of the membrane has positive charge, we will talk about it in few seconds. This polarity is due to unequal distribution of ions across the neurolema. Why there is polarity, minus charge inside of the membrane of neuron and positive charge outside of the membrane of the neuron in resting membrane potential, is due to unequal distribution of ions across the neurolema. Okay, there is greater concentration of sodium ions outside the membrane than the inside. So sodium ions and potassium ions both are positive charge, okay, but there is a greater concentration of sodium ions outside the membrane of neuron, outside the neurolema, than inside. And due to this reason, there is positivity outside the membrane. There is a greater concentration of sodium ions outside the membrane than the inside. This is due to the activity of sodium-potassium ATPase pump present in the neurolema. The inner surface of the membrane contains negative organic ions such as proteins, organic acids, etc., which make the polarity of the neurolema negative. I am repeating it because it is worth repeating, that outside of the neurolema there is a positive charge and inside of the neurolema is a negative charge in the resting membrane potential because of the unequal distribution of ions. There is a greater concentration of sodium ions outside the membrane than inside, and inside of the membrane has greater concentration of negative proteins and organic acids. Along with negative proteins and organic acids, inside of the membrane contains positive charged potassium ions. पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आइंस इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी इनसाइड नहीं होती. क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्जेस पोटेशियम आइंस, जो पॉजिटिव चार्ज आइंस हैं, वो इनसाइड कम है एज कंपेयर टू आउटसाइड. सोडियम आइंस ज्यादा है. सोडियम और पोटेशियम आइंस दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन सोडियम आइंस बाहर ज्यादा है जो कि पॉजिटिव है, और पोटेशियम आइंस इनसाइड ज्यादा है लेकिन कम है पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड. नेगेटिव प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा है इनसाइड, जिसकी वजह से इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है. सो यहां ये लोग शो कर रहे हैं, दिस इज इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन and this is outside of the neuron, and this is the membrane of the neuron which is called neurolema. Membrane of the neuron को हम लोग plasma membrane of the neuron को neurolema बोलते हैं. Every cell has a membrane. In the same way, neuron cell has a membrane which we call neurolema. जो ये सेल मेम्ब्रेन है, जो न्यूरोलीमा है, इसके पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं. For example, sodium potassium ATPase pump. This is sodium potassium ATPase pump and this is potassium channel. In the same way, they also contain sodium channels भी होते हैं इनके पास. ठीक है.
अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये पंप काम कर रहा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये पंप करता क्या है, ये पंप मूव करवाता है 3 सोडियम आयंस को इनसाइड से लेकर आउटसाइड। दिस पंप्स मूव 3 sodium ions outside of the membrane and 2 potassium ions inside of the membrane। देखें 3 sodium ions बाहर जा रहे हैं और 2 potassium ions अंदर आ रहे हैं। जब ज्यादा दोनों पॉजिटिव हैं, सोडियम आइंस भी पॉजिटिव होते हैं, पोटेशियम आइंस भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव आइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल outside of the membrane is positive and inside of the membrane is negative। इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव इस वजह से होता है क्योंकि उसके पास एक तो कम पॉजिटिव चार्जेस पोटेशियम होते हैं, उसके साथ एज कंपेयर टू आउटसाइड ज्यादा पॉजिटिव आइंस है, उसके साथ कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दिस मेंटेन्स द -65 मिलीवोल्ट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। -65 मिलीवोल्ट कौन सा होता है, ये इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन शो कर रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now, the second part of nerve impulse is action potential. What is action potential? It is a temporary localized reversal of the polarity of the neurolema which occurs when neurolema is stimulated, for example, electric shock, touch, sound, vibration, etc. जब कोई भी स्टिमुलस आएगा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शॉक का स्टिमुलस आया, पेन का आया, टच का आया, साउंड का या वाइब्रेशन का, वो जो है न्यूरोलीमा की जो पोलैरिटी थी, जो चार्ज था इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव था ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, उसको रिवर्स कर देगा, इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड नेगेटिव था और एक्शन पोटेंशियल में इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। That is why they are saying it is a temporary localized reversal of the polarity। polarity जो चार्ज होता है वो रिवर्स हो जाता है, इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है ड्यू टू any stimulus, any change। Action potential has two parts. One is called depolarization and the second is called repolarization। Depolarization occurs, depolarization जब होता है जब सोडियम चैनल्स ओपन हो और सोडियम आइंस अंदर की तरफ मूव करें, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। Depolarization occurs when sodium ions move from outside to inside of the neurolema। And repolarization occurs when potassium channels open and potassium ions move from inside to the outside। Okay, so here they are showing this is neurolema and this is sodium potassium ATPase pump जो कि resting membrane potential में काम कर रहा था। और अब हमारे पास action potential में दो पंप काम करेंगे, दो चैनल्स काम करेंगे, एक को बोलेंगे सोडियम चैनल और एक को बोलेंगे पोटेशियम चैनल। दिस येलो सोडियम चैनल्स वर्क एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन में काम करेगा ये, while potassium channel works at the time of repolarization। So this diagram, this left diagram is showing depolarization because sodium channel is working, and this right diagram is showing repolarization because potassium channel is working, not sodium channel। Okay, and here they are showing the resting membrane potential because of the working of sodium potassium ATPase pump। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम कर रहा है जो कि 3 सोडियम आइंस को बाहर मूव करवा रहा है, 3 सोडियम आइंस येलो और 2 पोटेशियम आइंस को इनसाइड मूव करवा रहा है। वाइल सोडियम पंप और पोटेशियम पंप जो है दोनों क्लोज है, दोनों काम नहीं कर रहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। डीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप भी काम नहीं करता और पोटेशियम चैनल भी काम नहीं करता। ओनली वन channel is working, which is sodium channel, voltage gated sodium channel is working। While in repolarization sodium potassium ATPase pump भी काम नहीं कर रहा और ना ही सोडियम चैनल काम कर रहा है, सिर्फ पोटेशियम चैनल काम कर रहा है और ये वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो कर रहा है। So let's talk about propagation of the impulse। We have talked about resting membrane potential, action potential, and now propagation of the impulse। So what is propagation of the impulse? The action potential developed locally spreads along the entire neurolema। यहां पर ये लोग शो कर रहे हैं, this is neuron, this yellow is neuron and this black line they are showing neurolema, membrane of the neuron। these blue are myelin sheath। Okay, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल यहां पे डेवलप्ड हुआ है लोकलाइज्ड एरिया में, पहले यहां डेवलप होगा फिर प्रोपोगेट करके आगे आएगा।
पूरे न्यूरॉन में डेवलप होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एन इम्पल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सोडियम चैनल, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था तो पॉजिटिव बाहर की साइड पे थे आइंस और नेगेटिविटी इनसाइड पे थी। उसके बाद हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन हुए और सोडियम आइंस इनसाइड मूव किए। जब सोडियम आइंस अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाएगी। इसका मतलब है रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी हो गई और बाहर जो है नेगेटिविटी हो जाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिविटी थी, इनसाइड नेगेटिविटी थी। लेकिन एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, ड्यू टू द वर्किंग ऑफ सोडियम चैनल्स, सोडियम आइंस आर मूविंग इनसाइड और अंदर पॉजिटिविटी हो रही है। उसके बाद और यहां पर देखें, यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो करें, बाहर पॉजिटिविटी और इनसाइड नेगेटिविटी। जब यहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, फिर इसके बाद यहां पर जाकर डीपोलराइजेशन होगी। जिस तरह यहां पर हुआ था इस तरह यहां पर भी सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम आइंस इनसाइड मूव करेंगे और डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पहले सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम आइंस इनसाइड आएंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम आइंस बाहर जाएंगे। फिर उसके बाद पोटेशियम बाहर चले गए, आइंस सोडियम इनसाइड आ गए। ये हो गई हमारे पास एक्शन पोटेंशियल। लेकिन फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आएगा, जिसमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करेगा। जो सोडियम आइंस सोडियम चैनल के थ्रू अंदर आए थे और पोटेशियम आइंस पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर गए थे, उनको रिवर्स कर देगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करेगा और 3 सोडियम आइंस को बाहर मूव करवाएगा और 2 पोटेशियम आइंस को इनसाइड मूव करवाएगा और वापस जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। So this is about the propagation of the impulse. Now let's talk about synapse. The region where the impulse moves from one neuron to the another neuron is called synapse. This is the point, synapse is the point where 2 neurons talk to each other. So this is the presynaptic neuron and this is the postsynaptic neuron, and this is synapse. Okay. So this is synapse. Synapse has following components. There are 3 components of the synapse. One is called presynaptic membrane of the presynaptic neuron. Synapse से पहले वाला न्यूरॉन को हम लोग presynaptic neuron बोलते हैं और इसकी मेम्ब्रेन को presynaptic membrane बोल रहे हैं। Second, this is the gap which is called synaptic cleft, and third is the postsynaptic neuron or the postsynaptic membrane. So ये प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। होता क्या है बेसिकली, जब वन न्यूरॉन टॉक्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू दिस साइनेप्स, ओके, सो कैल्शियम आइंस जो होते हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं, ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम आइंस मूव करते हैं इनसाइड, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर मूव करेंगे। जब कैल्शियम आइंस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएंगे, वो क्या करेंगे, वो इंड्यूस करेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स को टू मूव टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कि वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आए। यहाँ पर प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। तो ये इंड्यूस करते हैं कैल्शियम चैनल्स किसको, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स को, कि वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आए। जैसे ही वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आएंगे, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वेसिकल जो है उसकी मेम्ब्रेन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उन रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे और फिर इंड्यूस करेंगे चेंज किसके अंदर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। Okay, so this is about the synapse. Now let's talk about what are neurotransmitters. I have told you कि synaptic vesicles के अंदर neurotransmitters होते हैं जो कि रिलीज होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से into the synaptic cleft और फिर वो जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। Neurotransmitters are the chemical messengers that transmits the message from one neuron to another neuron across the synapse. Okay, these are the chemical messengers जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एसिटाइलकोलिन, समटाइम्स न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट nerve impulse, in which we talked about resting membrane potential, action potential, synapse, and the neurotransmitter.
Thank you so much.